Jai Hind students. So today we are going to start with the next exercise, exercise 7.6, integration by parts. But before I start the exercise, let us introduce what do you mean by integration by parts and where we can use this exercise or where we can use this method. And what is the method? How to apply that method and where to apply that method. First of all, when there is a product of two numbers, so then either we can convert that product in a sum of two number or in a difference of a function, or sometime that product of two number we can convert in the form of a single function by substitution method. It means या तो प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में लिखा जाता है या फिर प्रोडक्ट को हम विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड वी कैन कन्वर्ट इन ए सिंगल फंक्शन एंड देन वी कैन इंटीग्रेट दैट फंक्शन. बट वेयर एवर दीज टू मेथड्स फेल, जहां पे भी ये दो मेथड फेल हो जाते हैं, देयर वी कैन यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. इट मींस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं? बाय इंटीग्रेशन ऑफ parts. So, how to apply that one? What is the formula? Formula जो होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, वो क्या होता है? u into v d of x. ये दो फंक्शन है जिसकी इंटीग्रेशन माननी है, निकालनी है. So what is the formula? Product of two number. मान लेते हैं this is first function and this is second function. So what do we mean by first function? First function as it is. Integration of second function. This is the formula of product of two number to find out the integration where that first two method fails. First two method कौन से? Where we can write the product in the form of sum or difference of a function, or by substitution method we can convert in a single function. First function as it is, second integration of second function minus integration, then bracket d dx of first function into integration of second function, then bracket close. जो भी इसका आंसर आएगा उसकी दोबारा से क्या? इंटीग्रल. Or we can write like this: if we have two function, first, second function, then first function as it is, integration of second function minus integration of d dx of first function, then integration of second function, close, and then this is big integration. You can say that minus dx और यहाँ पे भी dx. So this is the formula. But how to apply the formula? कौन सा first function होता है, कौन सा second function होता है, that उसका हमारे पास एक रूल है. दिस रूल I L A T E, आइलेट रूल. क्या रूल है? आइलेट रूल. आइलेट का मतलब जो फर्स्ट फंक्शन हम लेते हैं या सेकंड फंक्शन लेते हैं वो इस अकॉर्डिंग लेते हैं इन मोस्ट 99.9% केसेस में. I means all the inverse function, inverse trigonometric function like sin inverse x, cos inverse x, tan inverse x, cot inverse x, उसके बाद secant inverse x, cosecant inverse x. Okay, L stand for all logarithmic function, log x का square, जो भी log की टर्म में आएंगे. A stand for all algebraic
Algebraic means all polynomial function, x square, 2x, all algebraic function we can consider in the third one. T for trigonometric function, sin x, cos x, tan x, cot x, secant x, cosecant x. Clear? Then E stand for exponential function, जो e की पावर में होंगे, e की पावर 2x, e की पावर x, e की पावर कुछ भी होगा, whatever it is there. तो जो भी e की पावर में होंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे, that we will treat as e stand for e. अब जो रूल चलेगा, वो रूल जो है वो इसके हिसाब से होगा. फर्स्ट फंक्शन डिसाइड होगा इसके हिसाब से. अगर इनवर्स फंक्शन और लॉग फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा? ये वाला, इसके हिसाब से, आइलेट के हिसाब से. अगर एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो पहले कौन सा आता है? एल्जेब्रिक आता है. तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा डिसाइड होगा? एल्जेब्रिक फंक्शन होगा. सो दिस इज कॉल्ड आइलेट, ILATE, आइलेट रूल, which we can apply when there will be a product of two number. Now we are going to have the theorem ki how this formula driven, from where we got this formula. Pause the video to note down. Now here comes the theorem. Rule: if u and v are two functions of x, yani these two are of same function x, then product of two function is equal to this. That formula is there. And how to drive this formula? हम f और g कोई भी दो डिफरेंशियल फंक्शन लेते हैं जो एसोसिएट करते हैं किसके साथ? x के साथ. If f and g are two differential function of a single variable, किसके हैं ये? f और g फंक्शन x के. Then the product rule of differentiation. So we have, हमारे पास दो फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है और प्रोडक्ट रूल जो लगता है दैट इज d अपॉन dx ऑफ किसके ऊपर? f ऑफ g के ऊपर. तो क्या आएगा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज dg अपॉन dx प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज g आ गया तो ये आ गया df अपॉन dx. नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं तो इस तरफ इंटीग्रेशन आएगा. सो d अपॉन dx f ऑफ f g. अगर ये d अपॉन dx f ऑफ g है, जैसे ही मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, ये क्या है? डेरिवेटिव है किसका? f ऑफ g का. तो क्या हो जाएगा? फंक्शन पे आ जाएगा. तो या तो हम इसको ऐसे लिख लें, dx इज इक्वल टू f ऑफ dg अपॉन dx d ऑफ x प्लस g df अपॉन d ऑफ x. नाउ इंटीग्रेट कर दिया, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा सिर्फ फंक्शन f ऑफ g. यहां पे क्या आ जाएगा? अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं, सेम टू सेम यही रहेगा, dg अपॉन dx d ऑफ x प्लस g d ऑफ f d ऑफ x dx. क्लियर? अब नाउ डू वन थिंग. अब मैं कुछ लेट लगाऊं करने, देखें ध्यान से. लेट f को मैं ट्रीट करता हूं u. क्लियर? f को मैं ट्रीट करता हूं u और dg अपॉन dx को मैं ट्रीट करता हूं, dg अपॉन dx को मैं ट्रीट करता हूं v. थोड़ा सिंपलेस्ट वे में लिखने के लिए, f, व्हाट इज f? u एंड dg अपॉन dx v. इसका मतलब df अपॉन dx क्या हो जाएगा? u डैश x. ध्यान से देखें, f अगर u है तो df अपॉन dx क्या हो जाएगा? u डैश x. अगर dg अपॉन dx v है तो g ऑफ x क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ v ऑफ x dx. या g की वैल्यू क्या आ जाएगी? g ऑफ x लिख लो या g लिख लो, g की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्योंकि हमने यहां पे क्या किया हुआ है, यहां पे हमने g लिखा है फंक्शन वो x का ही,
तो चाहे g लिख लो चाहे g ऑफ x लिख लो, एक ही बात है। बट अगर वहां पे g लिखा है तो नो नीड टू गेट कंफ्यूज, मैं यहाँ g लिख देता हूं ताकि, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी क्या लिखा था, आई रिटन f, नॉट f ऑफ x, बात एक ही है। तो dg अपॉन dx कितना आ जाएगा, ये उधर चला गया, d जब गया तो इंटीग्रेशन का साइन लग गया, क्लियर। dx क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ और जब d गया तो इंटीग्रेशन का साइन लग गया, या डेरिवेटिव जब उधर गया तो इंटीग्रेशन का साइन लग गया। नाउ पुट दिस वैल्यूज, हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं, लेट अस सी व्हाट वी विल गेट। f की वैल्यू कितनी है, u, g की वैल्यू कितनी है, इंटीग्रेशन ऑफ b dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f की वैल्यू u, dg अपॉन dx v, बाहर dx प्लस g की वैल्यू, इंटीग्रेशन का साइन कैपिटल, देन g की वैल्यू कितनी है, इंटीग्रेशन ऑफ vx, df अपॉन dx क्या है, df अपॉन dx है u डैश x, तो u डैश x मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ vx dx और बार dx। नाउ इसको इधर रखते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो इट विल बिकम uv, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू uv dx माइनस कैपिटल इंटीग्रेशन, बड़ा वाला इंटीग्रेशन, सॉरी नॉट कैपिटल, बड़ा वाला इंटीग्रेशन ब्रैकेट में ddx ऑफ दिस u मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ vx dx, देन ब्रैकेट क्लोज, देन dx। इट मींस u इंटू v dx को कैसे लिखते हैं, ये फर्स्ट फंक्शन ट्रीट हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे है, तो इसी वे से हम फॉर्मूला बनाते हैं कि किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकंड मानना है। ये नहीं कि अगर क्वेश्चन में जो पहले लिखा है दैट इज द फर्स्ट फंक्शन, नो, अकॉर्डिंग टू द आइलेट रूल आपको फर्स्ट और सेकंड डिपेंड करेगा, कौन सा फंक्शन फर्स्ट होगा एंड कौन सा फंक्शन सेकंड फंक्शन होगा। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस क्या बड़ा वाला इंटीग्रेशन ब्रैकेट में ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ब्रैकेट क्लोज dx। Pause the video to note down. Now one by one we will discuss the questions from exercise 7.6 integration by parts. So I am going to write here the rule कि which function will treat as a first function, which function will treat as a second function. So that function is depend upon this rule, ILATE, Eilert rule. So let us see. Now first question is, problem is, always write down I, left hand side, always I stand for integration, I is equal to integration of x sin x. So here two functions are there, product of two function according to Eilert rule। सबसे पहला फंक्शन इनवर्स होता है, नहीं है, फिर लॉगरिथमिक होता है, नहीं है, फिर एल्जेब्रिक होता है, तो एल्जेब्रिक फर्स्ट फंक्शन, सेकंड वाला ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अकॉर्डिंग टू Eilert रूल फर्स्ट फंक्शन इज एल्जेब्रिक इन दिस क्वेश्चन एंड सेकंड फंक्शन इज ट्रिग्नोमेट्रिक। व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से देखना कैसे, फर्स्ट एंड सेकंड dx। सो क्या फॉर्मूला होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन बड़ा वाला ब्रैकेट में ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ब्रैकेट क्लोज, बाहर dx। दिस इज द फॉर्मूला। सो हियर वी आर गोइंग टू अप्लाई I is equal to first function as it is, integration of second function I am going to write in the formula minus integration ddx of first function, clear, then integration of second function, then close, then बड़ा वाला इंटीग्रेशन यूज करेंगे। ओके, नाउ I is equal to
x एज इट इज, साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस कॉस, तो माइनस बार और कॉस एक्स, देन माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन, x की डी डी एक्स होती है 1, तो 1 लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन होती है माइनस कॉस, तो बाहर प्लस हो गया, और ये क्या आ गया कॉस एक्स, और ये dx, अगेन i इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स, कॉस का करेंगे तो वो होती है साइन एक्स प्लस सी, सो दिस इज योर सॉल्यूशन, वेरी सिंपल. नाउ कम टू प्रॉब्लम सेकेंड, अगेन सेम फॉर्मूला we are going to use. I am not writing again and again the same formula, but while examination you have to write the formula. It will carry 1 marks. If suppose question is of 4 marks, so formula you will get 1 marks, or maybe they can deduct 1 marks of formula. So now come to this. According to again same x sin 3x same is there. So this is first function and this is treated as second function. So I is equal to first function as it is, integration of second function minus integration ddx of first function, integration of second function dx और बाहर ब्रैकेट के dx. क्लियर? नाउ I इज इक्वल टू x, साइन की करेंगे तो माइनस कॉस 3x, और एंगल की दोबारा से तो वो कहां आती है नीचे, माइनस डी डी एक्स इंटीग्रेशन डेरिवेटिव x का 1 होता है, इंटीग्रेशन साइन x की माइनस साइन x की जो इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है माइनस कॉस 3x और नीचे 3, और फिर बाहर जो लगा हुआ है ये dx, ये dx इस इंटीग्रेशन का, ये dx इस कंप्लीट इंटीग्रेशन का. नाउ I इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन 3 प्लस कॉस का करेंगे साइन 3x, एंगल दोबारा से 9 प्लस c. So this is your solution. So simple. But where to apply this formula? When you are not able to find out, convert the product of two functions in the form of sum or difference of a function, or you can't able to convert through substitution method in a single function. Now come to this x square ex. आइलेट रूल के हिसाब से x स्क्वायर एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, e एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सो ये फर्स्ट और ये सेकंड अकॉर्डिंग टू दैट रूल. क्लियर? सो नाउ I is equal to first function as it is. Clear? I is equal to first function as it is. Then integration of second function. Now minus बड़ा वाला इंटीग्रेशन ब्रैकेट डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ब्रैकेट क्लोज, बाहर dx. नाउ इंटीग्रेट I इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, e की पावर x की इंटीग्रेशन करेंगे, e की पावर x, x का कोएफिशिएंट नीचे आना चाहिए बट इट इज 1 हियर, माइनस इसका ddx करेंगे तो ये आ जाएगा 2x इंटू e की पावर x, देन बाहर क्या है dx. I इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर e की पावर x माइनस कांस्टेंट बाहर हमेशा, अगेन इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, सो क्या करेंगे दोबारा से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे. सो इसमें भी फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, ये फर्स्ट ट्रीट होगा और ये दिस विल ट्रीटेड एज ए सेकंड फंक्शन अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल. सो I is equal to x square e की पावर x minus 2 bracket start. First function as it is, integration of second function minus बड़ा वाला इंटीग्रेशन लगा देते हैं
ब्रैकेट स्टार्ट डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx, फिर ये वाला ब्रैकेट क्लोज dx, बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। क्लियर? I इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ई एक्स माइनस 2 ब्रैकेट के बाहर x इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स ई की पावर x माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ x 1 इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x dx ब्रैकेट क्लोज। I इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ई की पावर x, अंदर ले जाओ माइनस 2x ई की पावर x, फिर अंदर ले जाओ प्लस 2 ई की पावर x की करेंगे, ई की पावर x होती है प्लस c। You can take e की power x as a common, otherwise leave as it is. So this is your solution. So you can apply this integration by part using Euler rules, so that the product of two functions become very easy. Pause the video to note down. Now come to problem 4. So again it's a product of two number, one is algebraic, second one is log function. So according to Euler rule, log will be treated as a first function. तो ये first हो गया, x will treated, algebraic will treated as a second function. So first function again, first function as it is, integration of second function minus बड़ा वाला integration bracket start ddx of first function into integration of second function, then bracket close dx. I is equal to log of x. x की इंटीग्रेशन करेंगे मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं कर देना, ये लॉग का एंगल है, लाइक दिस. सो माइनस इंटीग्रेशन ddx ऑफ log x 1 अपॉन x, इंटीग्रेशन ऑफ x x स्क्वायर अपॉन 2 dx. ये कैंसिल आउट हो गया. I इज इक्वल टू, इसको पहले लिख लेते हैं, x स्क्वायर log ऑफ x अपॉन 2 माइनस 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x dx. क्लियर? I इज इक्वल टू x स्क्वायर log ऑफ x अपॉन 2 माइनस 1/2, x का करेंगे x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c. So I is equal to x square log of x upon 2 minus x square upon 4 plus c. So this is your solution for this. Again, problem 5, algebraic, logarithmic. First algebraic, logarithmic, second algebraic. So simple. Now again utilize the formula. First function as it is, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन ब्रैकेट ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, देन ब्रैकेट क्लोज dx. क्लियर? ये इंटीग्रेशन है और ये ब्रैकेट है. I इज इक्वल टू log ऑफ 2x इंटू एक्स स्क्वेयर अपॉन 2, एक्स की इंटीग्रेशन होती है एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन लॉग की करेंगे 1 अपॉन एंगल, एंगल की दोबारा से कैंसिल आउट. ddx है ये, लॉग की क्या होती है 1 अपॉन एंगल, और एंगल की दोबारा से मल्टीप्लाई एक्स की एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 और बाहर dx. इंटीग्रेशन आ गई, dx खत्म हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया. सो I इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 log ऑफ 2x माइनस 1/2 बाहर, अंदर रह गया x dx. I इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 log ऑफ 2x माइनस x का करेंगे x स्क्वेयर अपॉन 2, बाहर एक 2 है 4 प्लस c.
So this is your solution. Very simple. Pause the video to note down. Now again, the same question, algebraic, logarithmic. So according to this, log is the first function, algebraic is the second function. So I is equal to first function as it is, integration of second function minus integration bracket start ddx of first function, okay, then multiply integration of second function, then bracket close बार dx आ गया. एक dx इस इंटीग्रेशन का, एक dx इस पूरे कंप्लीट ब्रैकेट के बाद जो इंटीग्रेशन लगा है उसका. I is equal to log x into x cube upon 3 minus इंटीग्रेशन d अपॉन dx करेंगे log x का 1 अपॉन x मल्टीप्लाई x स्क्वायर का करेंगे x क्यूब अपॉन 3 ब्रैकेट क्लोज dx. ये कैंसल आउट हो गया. सो I इज इक्वल टू x क्यूब अपॉन 3 log ऑफ x माइनस 1/3 बाहर x स्क्वायर, यहां 2 बचा था, dx. Now again integrate this. I is equal to x cube log of x upon 3 minus 1/3 x square का करेंगे तो ये आ जाएगा x cube upon 3 plus c. So your answer will become x की power 3 log x upon 3 minus x की power 3 upon 9 plus c. So this is your solution of this. Now question changes. In inverse function, x is equal to sin inverse x dx. Now listen very carefully. We have two methods to solve the inverse function. हमारे पास दो मेथड होते हैं इनवर्स फंक्शन को सॉल्व करने के. जो इजीएस्ट वे होता है वो मेथड होता है कि साइन इनवर्स x को t पुट कर लो. हम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, कि इसको फर्स्ट फंक्शन माने और इसको सेकंड फंक्शन माने, क्योंकि हमारे पास साइन इनवर्स x की जो ddx होती है वो होती है. बट अगर इजीली इसको फॉर्म करना है तो इसको पुट कर लो. सो आई विल सॉल्व इन बोथ द वेज सो दैट यू कैन चेक द डिफरेंसेस. सो कम ऑन, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला पुट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t. फिर अगला स्टेप क्या है? दिस इज सेम स्टेप व्हाइल वी आर पुटिंग दिस इनवर्स फंक्शन इक्वल टू t, कि x की वैल्यू कितनी आ गई? साइन t. नाउ डिफरेंशिएट, dx की वैल्यू कितनी आ गई? cos t dt. क्लियर? सो I की वैल्यू कितनी आई? x की वैल्यू साइन t और साइन इनवर्स की t. ध्यान से देखो, x की साइन t, साइन इनवर्स की t, तो मैं t पहले लिखता हूं. x की क्या आ गई? साइन t. cos t, ये dx की आ गई. क्लियर? ये 3 बन गए. 3 नहीं, हम इसको 2 बनाएंगे. 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई. ध्यान से देखो, इफ यू नो द फॉर्मूलाज देन इट इज वेरी इजी फॉर यू. 2 sin a cos a, सो ये हो जाता है 2 sin 2t dt. इट्स वेरी सिंपल. अब फर्स्ट फंक्शन कौन सा ट्रीट होगा? आइलेट के अनुसार फर्स्ट एल्जेब्रिक, सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक. क्लियर? ओके, नाउ I इज इक्वल टू हाफ, ब्रैकेट बड़ा वाला. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन की करेंगे माइनस कॉस 2t, एंगल नीचे, देन माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन, ब्रैकेट स्टार्ट. ओके, ddx, सॉरी d अपॉन dt, नॉट dx, क्योंकि यहां पे हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं. दिस यू कीप इन माइंड. कहीं यहां पे dx लिख दो. t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2t dt और बाहर अगेन dt.
So I is equal to minus t cos 2t upon 4, then माइनस, इसके डिफरेंशिएट करेंगे 1, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो साइन 2t की इंटीग्रेशन होती है क्या, माइनस, तो यहां पे प्लस कर देता हूं, cos 2t अपॉन t dt. क्लियर? ओके, सॉरी, 2t अपॉन 2 जो कोफिशिएंट होता है एंगल का वो लिखा जाता है. नाउ कम हियर, I is equal to minus t cos 2t upon 4 प्लस cos की इंटीग्रेशन करेंगे sin 2t अपॉन इसका कोफिशिएंट 2 नीचे ऑलरेडी 2 है 4 प्लस c. और बाहर एक और चीज, ये बाहर भी 1/2 था, यहां तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बट मैं यहां पे नहीं कर पाया, I forget to write down. तो ये क्या बन जाएगा 1 sin 2t अपॉन 8. अब मेन टास्क इन द लास्ट है इसमें, इट्स वेरी सिंपल, बट लास्ट में क्या होता है, इसका क्या मेन टास्क रहता है कि जिसकी वैल्यू जहां से पुट की थी t हमने पुट किया था, अब इसको हमें x में लाना है. तो कई बार क्या होता है, हम क्या लिख देते हैं cos, ये तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी sin इनवर्स x, बट कई बार हम यहां क्या करते हैं cos 2t को क्या लिख देते हैं cos 2t की जगह sin इनवर्स x. दैट इज रॉन्ग. वो क्या है, वो गलत है. क्यों गलत है, उसके बदले हमें क्या लिखना है, देखो ध्यान से, माइनस sin इनवर्स xt की जगह cos 2t का फॉर्मूला किसमें, sin में. cos 2t का फॉर्मूला क्या होता है sin में, ध्यान से, 1 माइनस क्या होता है 2 साइन स्क्वायर क्या t अपॉन, यही फॉर्मूला होता है cos 2t का, क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हाफ द एंगल. क्लियर? ये ब्रैकेट क्लोज अपॉन 4 प्लस साइन 2t का फॉर्मूला 2 साइन t cos t अपॉन 8 प्लस c. मोस्टली यही बनेगा हर बार. माइनस साइन इनवर्स x, 1 माइनस 2 साइन t की वैल्यू x है, तो ये क्या आ गया x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2 साइन t की वैल्यू कितनी है x. cos t क्या होता है, cos t होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर t. तो अंडर रूट 1 माइनस साइन टी की वैल्यू x है, x स्क्वायर अपॉन 8 प्लस c, ये 4 बच गया. सो I इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x 1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c. So this is the formula. Or like this we can find out the integration of inverse function. Pause the video to note down. Now this question we will do with the help of tan inverse only. We will not change this one. So you will come to know the difference. X tan inverse x. So according to Euler rule, this is first function. Algebraic is second function. So I is equal to first function as it is integration of second function minus integration then ddx of first function then integration of second function. Clear? I is equal to tan inverse x, इंटीग्रेशन करेंगे x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन tan इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इनटू x का x स्क्वायर अपॉन 2 देन dx. क्लियर? सो I इज इक्वल टू आ गया x स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन 2 माइनस
इंटीग्रेशन 1/2 बाहर, एक्स स्क्वायर ऊपर, और यहां आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx. Now listen, we already discussed that whenever the degree of numerator is equal to the degree of denominator, or whenever the degree of numerator is greater than the degree of denominator, then क्या होता है, we have to divide. तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे. -1/2. तो डिवाइड करने का कोई, यहां पे डिवाइड भी कर सकते हैं, सेम यू विल गेट, बट द इजीएस्ट वे इज, ये सेम पावर है, देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, सिर्फ +1 की कमी है, तो मैं एक बार इसको प्लस कर देता हूं, एक बार माइनस कर देता हूं. ध्यान से देखो, आप डिवाइड करेंगे तो भी यही बनेगा. ये थोड़ा शॉर्टकट वे हो गया. तो 2 -1/2 अलग अलग कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, प्लस 1/2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx. तो ये हो गया, कैंसिल आउट. एंड हियर वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन 2 माइनस हाफ x प्लस हाफ, इसका करेंगे, ये a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर होगा, तो ये होगा 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, तो a 1 है, प्लस c. सो व्हाट यू विल गेट, i इज इक्वल टू x स्क्वायर tan इनवर्स x. तो tan इनवर्स x आप कॉमन ले सकते हैं, तो आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 tan inverse x minus x upon 2 plus c. So like this also you can find out. Sin inverse में क्या होता है, यहां पे नीचे अंडर रूट आ जाता है. So in that case you have to substitute. वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, इसलिए whenever sin inverse x is there and cos inverse x is there, that time we are just substituting the value of sin inverse x, cos inverse x in the form of t. Now come to this, here again cos inverse x is there, so the easiest way is put cos inverse x is equal to t. x आ गया cos t, पहले इसको ट्रिग्नोमेट्री में लाओ, फिर डिफरेंशिएट करो. dx आ गया, cos की वैल्यू माइनस sin t dt. क्लियर, माइनस साइन टी dt. अब हम वैल्यू पुट करते हैं, i इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x की जगह पे t, x की जगह पे cos t, माइनस बाहर cos t साइन t dt. i इज इक्वल टू माइनस t, बाहर 1/2, यहां पे आ गया साइन 2t dt. क्लियर, i इज इक्वल टू -1/2. अब इंटीग्रेशन करते हैं वही आइलेट रूल के अनुसार. t जो है अलजेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्री है, फर्स्ट ये आ गया, सेकंड ये आ गया. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन, देन फर्स्ट फंक्शन कितना आ गया, ddx ऑफ, यानी d अपॉन dt, नॉट x, d अपॉन dx ऑफ t, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2t dt. क्लियर, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे, क्योंकि बाहर क्या लगा हुआ है, -1/2 लगा हुआ है. हाफ t एज इट इज, साइन का करेंगे कितना होता है, माइनस cos 2t अपॉन 2, देन माइनस इंटीग्रेशन, ये 1 और इसका करेंगे माइनस cos 2t अपॉन 2 dt, और बड़ा वाला ब्रैकेट फिर से क्लोज. अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, सो ये आ जाएगा t cos 2t अपॉन
4। ये प्लस कॉस को फिर से करेंगे साइन 2t अपॉन एक 2 ये गया और एक 2 इसका आया, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस c। देन अब i की वैल्यू आ गई हमारे पास t, cos 2t को cos की फॉर्म में लिखते हैं तो कितना आ जाएगा 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 अपॉन कितना है 4 प्लस साइन 2t को 2 साइन t cos t अपॉन 8 प्लस c। नाउ i इज इक्वल टू, अब वैल्यू को पुट करते हैं, t की वैल्यू कितनी आई cos इनवर्स x, 2 cos t की वैल्यू कितनी है x का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 प्लस 2, हमारे पास cos t की वैल्यू है तो sin t को cos की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, sin t क्या होता है, sin t होता है अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर t, तो ये क्या होता है sin t की वैल्यू होती है अंडर रूट 1 माइनस cos t कितना है x स्क्वायर, फिर cos t कितना है x अपॉन 8 प्लस c, ये कितना आ गया 4। सो व्हाट इज योर आंसर, i इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज cos इनवर्स x अपॉन 4 प्लस x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c। Pause the video to note down. So you have to do the questions from 1 to 9, and if you face any kind of problem to find out the solution, then you can write in the comment box or you can send me the in WhatsApp also. So till that, Jai Hind.